Hello friends, so this is my new lecture in the series of journal studies. So as I have already told you previously in my previous lecture that in the next lecture I will be covering the recent amendments in Essential Commodities Act, that is ECA 1995, which central government has done recently in around May or June 2020, and one amendment also has been done by government in March also in 2020. So we will study both the amendments which has been done in March and as well as in June. Plus we will also study the open-ended procurement policy, that what is this policy all about and what are the issues which are associated with this policy, and what alternative can be proposed to remove the shortcomings. In the last lecture I have covered the PDS, TPDS system, DBT, and National Food Security Act, and now I am starting with this new lecture. So issues associated with open-ended procurement policy. As friends, I have already told you in my last lecture that central government basically procure the grains, cereal grains from the farmers at MSP. So that is minimum support price. Now the policy of government, the model which government follows is the open-ended procurement policy. Now what is this open-ended procurement policy? That I already explained in the last lecture, but I'll also again repeat the same thing, that in the open-ended procurement policy, इसमें क्या है कि whatever grains has been reached to has been brought to the market or to the mandi by the farmers, so government procure all the grains irrespective of the stock limit which needs to be kept by the government, irrespective of that, or is irrespective of the the amount which it needs to purchase. So irrespective of that, it will procure all the grains, all the crops of the government, of the farmers, at minimum support price. So as you can see that government considers some crops are vital for food security, for which are vital, like rice, wheat, okay, pulses, oil seeds. So for such crop the government follows a liberal procurement policy known as open-ended MSP. Open-ended का मतलब कि जो भी आएगा, whatever grain has been brought to the mandi, so government will purchase that. So the government allows the procurement agencies like the FCI to buy whatever is being offered by the farmers for sale at MSP. So this is the open-ended, मतलब कि जो भी आया वो आपने खरीद लिया, चाहे स्टॉक में हो, चाहे स्टॉक में उसकी ऑलरेडी, मान लीजिए आपका बफर स्टॉक ऑलरेडी फुल है, सो द बफर स्टॉक विच FCI बेसिकली कैप्ड हैज ऑलरेडी बीन फुल, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट FCI को खरीदना पड़ेगा. सो दैट इज द पॉलिसी विच इज बीइंग फॉलोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नॉट ड्यू टू बेटर प्राइसेस ऑफ राइस एंड व्हीट, फार्मर्स डू नॉट माइग्रेट टू अदर क्रॉप्स, दैट यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज द इशू विच इज एसोसिएटेड विद ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी. अब क्या है कि क्योंकि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में सब कुछ मतलब गवर्नमेंट इज बाउंड टू परचेज ईच एंड एवरी क्रॉप, दैट इज वाई ड्यू टू बेटर प्राइसेस, क्योंकि उन्हें MSP पे बेच पाते हैं फार्मर्स, तो फार्मर डू नॉट माइग्रेट टू अदर क्रॉप्स. तो जिसकी वजह से मोनोक्रॉपिंग हो जाती है. एक तो बाकी क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम होता है, और उसके अलावा जो सॉइल फर्टिलिटी और वाटर टेबल डिप्लीशन होता है वो अलग होता है. इसके अलावा सरप्लस स्टॉक ट्वाइस मोर देन व्हाट नीड्स टू बी मेंटेन, यानी कि जितना चाहिए उससे ज़्यादा सरप्लस स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है. आप देखते भी हैं कि कभी रेलवे स्टेशन पे अनाज सड़ जाता है, कभी मंडियों में ही पड़ा सड़ जाता है, वो आम आदमी तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि जो बफर स्टॉक है वो ऑलरेडी इतना इसके अबव आपने स्टोर कर लिया, जितना स्टॉक लिमिट है उसके अबव और उसके ओवर आपने स्टॉक कर लिया. तो दैट इज़ वाई सरप्लस स्टॉक ट्वाइस मोर देन व्हाट नीड्स टू बी मेंटेन्ड. इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका जो क्रॉप सड़ने का खतरा है सड़ जाता है, और उसके अलावा नीडी सेक्शंस को नहीं पहुंच पाता. स्क्यूड द क्रॉपिंग पैटर्न दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. प्रेजेंटली 25 to 30 million tons लाइंग विद FCI के पास इतना 25 to 30 million tons ऑलरेडी पड़ा है एक्स्ट्रा. दिस इज एक्स्ट्रा, मतलब जितना 15 से 20 मिलियन टन के अलावा 25 से 30 मिलियन टन ऑलरेडी FCI के पास और पड़ा है. इवन आफ्टर प्राइस राइज ड्यू टू शॉर्टेज FCI होल्ड स्टॉक. मैंने कहा ना कि FCI स्टॉक रखता है इवन आफ्टर प्राइस, जबकि प्राइस राइज अगर हो जाता है
तो उसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई मार्केट में करना पड़ेगा ताकि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद एफसीआई स्टॉक करता है क्योंकि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट की। डिक्रीज ऑफ वाटर टेबल, क्वालिटी ऑफ सॉइल डिटेरियोरेट, ठीक है ना, डिटेरियोरेट हो जाती है सॉइल की क्वालिटी। सो दीज आर द इश्यूज विच आर एसोसिएटेड विद ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। नाउ अब हमने इश्यूज समझ में आ गए और हम पहले भी समझ चुके हैं इन इश्यूज को। अब इनका सॉल्यूशन क्या है, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए। So what are the alternatives to open-ended procurement policy? So we will study that कि how the issues which are associated or the limitations of open-ended procurement policy can be eliminated. So in this case, CACB, which is Commission for Agricultural Cost and Prices, and Niti Aayog have proposed alternatives to procurement-based market support. So इन्होंने alternatives propose किए हैं। क्या alternative propose किए हैं? Closed-ended होना चाहिए, ओपन एंडेड ही क्लोज एंडेड होना चाहिए। टू मूव अवे फ्रॉम ओपन एंडेड स्कीम्स टू क्लोज एंडेड वेयर एफसीआई कैन गो अप टू सर्टेन मार्जिन ओवर द बफर, यानी कि जितना आपको स्टॉक लिमिट दिया गया है उसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन और आप ले सकते हो, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा और स्टोरेज आप बढ़ा सकते हो अपना, बट ज्यादा आप स्टोरेज नहीं करोगे। तो एक तरह से क्लोज एंडेड हो गया। क्लोज एंडेड मतलब कि आपने क्लोज कर दिया प्रोक्यूरमेंट, अगर आपकी स्टॉक लिमिट पूरी हो गई तो आपने क्लोज कर दिया। सो दैट इज द क्लोज एंडेड। सो यू कैन गो अप टू ए सर्टेन मार्जिन ओवर द स्टॉक बफर, ओवर द स्टॉक लिमिट, बट नॉट बियॉन्ड दैट। देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड कोटा सिस्टम। देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब फार्मर जो पहले आया उसका क्रॉप पहले ले लिया, बाद वालों को नहीं, हो सकता है बाद वालों का क्रॉप नहीं लिया गया, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एंड कोटा सिस्टम, ऑब्वियसली कोटा सिस्टम जैसे मैंने बात की कि कुछ कोटा आपने एक डिफाइन कर दिया कि इतने परसेंट ही क्रॉप को प्रोक्योरमेंट करना, उसके बाद नहीं करना। वही जो मैंने आपको बताया कि दिस इज समवट सिमिलर टू द क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड के सिमिलर ही है कि कोटा आपने एक डिफाइन कर दिया और उस कोटा के अगेंस्ट ही उतना ही आपको क्रॉप प्रोक्योर करना है। ए बेटर ऑप्शन इज द प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश एंड फ्यू अदर स्टेट्स। तो इसके अलावा आप प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। अब इसमें क्या ना, आपको प्रोक्योरमेंट ही नहीं करना होगा। ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट में तो आप प्रोक्योरमेंट करते हो, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम में आपको प्रोक्योरमेंट नहीं करना। अंडर दिस only the price loss that is different between market price and MSP is reimbursed directly to the farmer. It is found to be cost effective and has been recommended by CACP for pan India adoption. तो इसके अंदर क्या है कि केवल जो आपको नुकसान हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में ही बेचोगे और मार्केट में बेचना है, प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा, और डायरेक्टली फार्मर के खाते में पैसा पहुंचा दिया जाए प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट, डेट इज कि एमएसपी मान लीजिए 100 रुपये है और आप 70 रुपये में आपने मान लीजिए मार्केट में बेच दिया, तो 30 रुपये गवर्नमेंट आपके खाते में डाल दे। इसका फायदा क्या होगा कि एक तो सब्सिडी जो बिल है गवर्नमेंट का वो कम होगा, उसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट फिजिकल प्रोक्योरमेंट जो करना पड़ता है ग्रेन्स का वो भी कम हो जाएगा। तो ये CACP सेंटर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में काम करता है, इसने ऑलरेडी रिकमेंड किया है कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, और अगर इसको गवर्नमेंट फॉलो करेगी तो जो गवर्नमेंट की सब्सिडी बिल है वो काफ़ी गवर्नमेंट बचा सकती है, और इसके अलावा फार्मर्स के लिए भी सुटेबल है क्योंकि उनके खाते में सीधा पैसा पहुंचेगा, वो डिपेंडेंट नहीं होंगे कि वो जो है मतलब कि मंडी में जाके बेचें, वो खुले मार्केट में भी जाके बेच सकते हैं, और जो भी उनको डिफरेंस होगा वो फिर पेमेंट गवर्नमेंट उनको कर देगी। तो डेफिनेटली इट इज अ विन विन सिचुएशन बोथ फॉर फार्मर्स एज वेल एज गवर्नमेंट। So these are the alternative which are being proposed to open-ended procurement policy. Now we will study the Essential Commodities Act 1955. So as you already know, it is very simple. Essential Commodities Act में क्या है कि इसमें by declaring a commodity as essential, the government can control the production, supply and distribution of that commodity. Obviously किसी भी commodity को essential कर देते हैं, जैसे health को essential commodities में डाल रखा है, medicines को प्लस आपके जो फूड ग्रेन्स हैं उनको डाल रखा है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, ड्रग्स हैं, फर्टिलाइजर्स भी डाल रखे हैं, पेट्रोलियम है, तो गवर्नमेंट कैन कंट्रोल दी प्रोडक्शन भी कंट्रोल कर सकती है, सप्लाई भी कंट्रोल कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट कमोडिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट कैन कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो बोथ गवर्नमेंट कैन, ऑल द थिंग्स गवर्नमेंट कैन कंट्रोल। इम्पोज ए स्टॉक लिमिट, यानी कितना स्टोरेज रख सकते हो वो भी कंट्रोल कर सकती है, और कंज्यूमर्स को टू मेक देम एट फेयर प्राइसेस, यानी कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो आप स्टॉक से रिलीज कर दोगे, किसी चीज़ का कम हो जाता है तो आप स्टॉक कर लोगे ताकि प्राइस मेंटेन रहे। द लिस्ट ऑफ आइटम्स अंडर द एक्ट इंक्लूड, जैसे मैंने आपको बताया, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स।
उसके अलावा फूड ग्रेन्स वगैरह जो भी हैं। द सेंटर कैन इंक्लूड न्यू कमोडिटीज एज एंड वैन, किसी जब भी उसको नीड लगेगी सेंटर कैन अकोमोडेट न्यू कमोडिटीज एंड टेक देम ऑफ द लिस्ट, और कभी भी रिमूव कर सकता है किसी को भी और कभी भी डाल सकता है। अंडर द एक्ट द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फिक्स द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ एनी पैकेज प्रोडक्ट दैट इट डिक्लेयर्स एन एसेंशियल कमोडिटी, जैसे एमएसपी करते भी हैं डिक्लेयर ये। तो सो मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब किसी भी कमोडिटी इससे ज़्यादा पे नहीं बिकेगा मार्केट के अंदर। तो बेसिकली ये मार्केट प्राइस है, एमएसपी नहीं है, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है कि किसी भी प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि उससे ऊपर तो नहीं बिकेगा मार्केट में, इतना भी गवर्नमेंट सेट कर सकती है। ये क्यों करती है गवर्नमेंट? ताकि कोई भी एक कमोडिटी अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ है और अगर उसका प्राइस मार्केट में बढ़ता है तो एक एमआरपी अगर गवर्नमेंट फिक्स कर देगी तो उस एमआरपी के ऊपर नहीं बिकेगा, ताकि वो एसेंशियल कमोडिटीज़ को इंश्योर कर सके कि वो नीडी पीपल के पास पहुंच जाए। तो ये बेसिकली दिस इज सम ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, यू मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ये सिंपल अंडरस्टूड है दैट इट गिव्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरेशनल स्पाइक्स इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली स्टॉक गवर्नमेंट जो है रिलीज कर देगी और प्राइस को कंट्रोल करती है, इस वजह से गवर्नमेंट इसी के द्वारा। Government has invoked the act of umpteen times to ensure adequate supplies. It cracks down on hoarders and black markets. आपको पता भी है कि कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज़ के, मान लीजिए प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट होर्डर्स पे और ब्लैक मार्केटर्स पे जो है गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है, गवर्नमेंट छापा मारती है वहाँ पे, और जो भी उनके पास स्टॉक होता है वो रिलीज़ कर देती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या है ना, एक स्टॉक लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, तो कहीं भी उस स्टॉक लिमिट से ज़्यादा कहीं पाएगा तो गवर्नमेंट उसको छापा मार के वहाँ से रिलीज करवा सकती है। तो स्टेट एजेंसीज कंडक्ट रेड्स टू गेट एवरीवन टू टो द लाइन एंड इरेंट आर पनिश्ड, और जो नहीं मानता है या जो गलती करते हुए पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है इस कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत। नाउ हाउ दिस एक्ट वर्क? If the center finds that a certain commodity is in short supply and its price is spiking, it can notify stock holding limits on it for a specified period. तो अगर कोई किसी कमोडिटी का शॉर्ट सप्लाई है और उसका प्राइस बढ़ा, ऑब्वियसली शॉर्ट सप्लाई होगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट स्टॉक होल्डिंग लिमिट कम कर देगी ताकि सप्लाई उसकी बढ़ जाए और जो उसका प्राइस बढ़ रहा है वो कम हो जाए। तो बेसिकली स्टॉक होल्डिंग लिमिट से गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल कर सकती है, बढ़ने से भी रोक सकती है और घटने से भी रोक सकती है। The states have to act on this notification to specify limits and take steps to ensure that these are adhered to. So जो states हैं वो भी इनके ऊपर नोटिफिकेशन में एक्ट करके वो भी अपनी लिमिट स्पेसिफाई कर सकते हैं। Anybody trading or dealing in a commodity, be it wholesalers, retailers or even importers, are prevented from stockpiling it beyond a certain quantity. ठीक है ना, इन क्वांटिटी इन प्रोडक्ट्स को जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत आते हैं, यू कैन नॉट कीप द स्टॉक ऑफ दीज प्रोडक्ट्स और दीज आइटम्स बियॉन्ड ए certain stock limit which has been fixed by the central government, and plus it can be fixed by state governments also. So in the case when the central government has fixed the stock limit by the central agencies to be, for example, 100 millitons, and the state can also at their their go down, state can also fix their limits, their different limits. So both can run parallel. A center can notify their stock limit and states can notify their stock limits. A state however can choose not to impose any restrictions. State हो सकता है लेकिन कोई भी restrictions ना impose करे. But once it does, traders have to immediately sell into the market any stocks held beyond the mandated quantity. तो जो mandated quantity अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है, अगर उससे ज़्यादा अगर स्टॉक पाया जाता है किसी भी ट्रेडर के पास, तो ट्रेडर्स हैव टू इमीडिएटली सेल, ट्रेडर्स को इमीडिएटली सेल करना होगा प्रोडक्ट इन दी ओपन मार्केट. Now what are the problems with the EC Act? That you have to understand. What are the problems which are associated with EC Act? तो अगर हम इसको समझ लेंगे problems with EC Act, then only we can understand why the amendments are required in this EC Act. So the rationale behind to understand the amendments we need to understand the problems which are associated with EC Act. Number one is increase in price volatility. बेसिकली क्या है ना कि प्राइस वोलेटिलिटी के लिए कम करने के लिए लाया गया था कि क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत हो रहे थे, प्राइस में होते हैं, तो इसलिए एक्ट लाया गया था. क्योंकि अगर मार्केट में फ्लक्चुएशंस होंगे तो मार्केट में रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि इंक्रीज होगा तो रिलीज कर दिया जाएगा, डिक्रीज होगा तो, मतलब प्राइस कम हो जाएगा तो रिलीज कर दिया जाएगा, और प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस अगर कम हो गया
यानी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो स्टोर बढ़ा दिया जाएगा ताकि प्राइस को एक लेवल पे लेकर आया जा सके। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये था, बट उल्टा हो गया, जो पर्पस था वही रिजॉल्व नहीं हो रहा। ऊपर से जो प्राइस वोलेटिलिटी खत्म करने के लिए लाया गया था, बल्कि इसने बढ़ावा दिया प्राइस वोलेटिलिटी को। क्यों दिया? वो इसलिए दिया बिकॉज देयर इज अ वाइडनिंग वेज बिटवीन होलसेल एंड रिटेल प्राइसेस, क्योंकि इस एक्ट की वजह से होलसेल और रिटेल प्राइसेस में बहुत वेज बढ़ गया। अब वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि क्या हुआ कि क्योंकि ये ना एक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता होर्डिंग और स्टोरेज में। अब क्या हुआ कि लोग स्टोर करने से भी डरने लग गए। क्यों डरने लग गए? क्योंकि इसमें क्या है ना, होर्डिंग और स्टोरेज में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। तो अगर होर्डिंग किसी ने अगर स्टोर भी कर रखा है ना, तो गवर्नमेंट उसको होर्डिंग मान के चलती है अगर प्राइस फ्लक्चुएशन मार्केट में हो रहा है। तो इसकी वजह से जो क्या हुआ फ्यूचर में, क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली आपने प्राइस कंट्रोल किया, बट फ्यूचर में क्या हुआ, जितने भी सारे ट्रेडर्स थे या जितने भी बिजनेसमैन थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब क्योंकि स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, तो क्या हुआ इसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली इससे और बढ़ गया, क्योंकि द अपोजिट ऑफ व्हाट इट इज इंटेंडेड फॉर। क्योंकि स्टोरेज नहीं होगा किसी भी प्रोडक्ट का तो प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी क्रॉप है उसका एक सीजन है और आप उसको स्टोर नहीं करेंगे फ्यूचर में सप्लाई के लिए, तो ऑब्वियसली क्योंकि सप्लाई नहीं होगी तो उसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। तो प्राइस वोलेटिलिटी एक्चुअली इससे इंक्रीज हो गई बजाय इसके घटने के, क्योंकि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, लोगों ने करना बंद कर दिया। उसके अलावा लैक ऑफ मोटिवेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। वन सिग्निफिकेंट रीजन वाई प्राइसेस ऑफ मोस्ट पल्सेस एंड ऑयल सीड्स एसेंशियल कमोडिटीज आर लैंग्विशिंग बिलो एमएसपी इज नॉट सरप्लस प्रोडक्शन but weak marketability and weak demand. So you understand that why prices of oil, pulses and oilseeds are languishing below MSP is not surplus production. तो ये क्यों इसका प्राइस जो है बिलो एमएसपी, जनरली ये बिलो एमएसपी बिकते हैं मार्केट में पल्सेस एंड ऑयलसीड। तो क्यों ऐसे बिकते हैं? इसकी वजह से नहीं कि इनका सरप्लस प्रोडक्शन है, बट इसलिए क्योंकि मार्केटेबिलिटी एंड डिमांड इनकी कम है, मार्केटिंग कम होती है इनकी, यानी कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया हुआ। Motivation is lacking palpably among processors and traders to buy during harvest and build inventory. There is fear of punitive action in the event of a price rise. जैसे मैंने आपको बताया, the same case as the price volatility of the grains as far as grains, cereal grains, that is rice and wheat is concerned. Same is the case with the pulses also. क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे स्टोरेज नहीं होता है, पल्सेस का एक टाइम होता है क्रॉप का प्रोडक्शन का, अब उनका स्टोरेज नहीं होता है तो प्राइस बढ़ जाता है। स्टोरेज में क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इस वजह से, क्योंकि मार्केटिंग में यानी कि सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से चाहे प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, इसके बावजूद प्राइस बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलते हैं, ये बिकता है ज़्यादा। EC has been enacted in the year 1995 when the economy was ravaged by famine and food shortages. So in the year 1995 जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा फेमाइन थे, यानी कि फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी। The government should note that today's scenario is much more different. We today have abundant food grains and therefore there is no need to control the distribution of grains in the market and to control the price rise by improving the supply. क्योंकि ऑलरेडी अब सप्लाई पूरे ईयर अराउंड होती है, तो अब कोई स्टॉक लिमिट इम्पोज करने की जरूरत नहीं है कि आपको एक स्टॉक भर के रखना है ताकि फ्यूचर में अगर इसकी प्रोडक्शन नहीं हुई तो आपके पास स्टॉक होगा तो आप सप्लाई कर पाओगे। लेकिन अब कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वी हैव अबंडेंस ऑफ फूड ग्रेन, तो अब कभी भी हमारे पास सप्लाई की शॉर्टेज, तो एटलीस्ट प्रोडक्शन की शॉर्टेज नहीं है, तो सप्लाई की शॉर्टेज तो में होगी ही नहीं। Now what are the recent, now after we have understood what are the issues which are associated with ECA, so that is why the amendments have been introduced by the government in June 2020। लेकिन इससे पहले इंक्लूजन ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर्स, ये मार्च में इन्होंने अमेंडमेंट किया था, ये इसमें ऐड किए थे। आप जानते हैं कोविड सिचुएशन की वजह से मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स ECA एक्ट में डाल दिए गए टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट्स key for preventing the spread of COVID-19 infection are available to people at the throwaway price, at the right price in the right quality. Okay, that is understood. Now, what amendments have been done in June? So deregulation किया, कुछ commodities में से रिमूव कर दी, जैसे सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, ऑनियंस, पोटैटोज, ये सब हटा दिए ECA में से। अब इसका हटाने का क्या हुआ, क्या मतलब हुआ हटाने से? अब जो स्टॉक लिमिट जो गवर्नमेंट ने इम्पोज की थी, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी सप्लाई, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी अब। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट, अब क्या होगा ना, इससे गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है, जो अभी डरता है आने से, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर चाबुक चला देती है इन दी वैल्यू चेन ऑफ दीज कमोडिटीज। नाउ एग्जेम्पशन क्या है, इसमें कुछ एग्जेम्पशन भी है। द ऑर्डिनेंसेस एश्योर्स दैट स्टॉकिंग लिमिट्स विल नॉट बी इम्पोज ऑन द प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट फिर भी इम्पोज कर सकती है स्टॉक लिमिट्स, सच एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वार हो गई, लड़ाई हो गई, फेमाइन यानी कि सूखा पड़ गया,
और नेचुरल कैलामिटीज, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई ऑफ सीवियर नेचर से, फ्लड वगैरह जो भी है। अब इसमें क्या है, दस इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चरल, अब इसमें क्या है ना, इसमें दो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं बेसिकली प्राइस राइज वाले पॉइंट्स हैं कि किस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज गवर्नमेंट कब मानेगी और गवर्नमेंट फिर स्टॉक लिमिट इम्पोज करेगी। तो वो कब मानेगी, दस इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस, तो जो भी फील्ड वाले प्रोड्यूस हैं, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस हैं जो कि पेरिशेबल हैं, ए 100% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। यानी कि मान लीजिए पिछले साल अगर पेरिशेबल का जो प्राइस है, अगर पेरिशेबल का जैसे मान लीजिए 10 रुपये है और 100% बढ़ गया, यानी कि 20 रुपये हो गया, तो अगर वो है, या फिर एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, या फिर जो रिटेल प्राइस है ऑफ लास्ट 5 ईयर्स अगर हम देखेंगे, उसका एवरेज देखेंगे, उससे अगर विच एवर इज लोअर, तो उससे हम देखेंगे, तो आज का प्राइस मान लीजिए 20 रुपये है, तो हम देखेंगे पिछले साल क्या था। पिछले साल अगर मान लीजिए 15 रुपये है, यार ये तो 100% तो नहीं बढ़ा, तो ठीक है, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ये देखेंगे 5 साल का भी एवरेज निकालेंगे, 5 साल के एवरेज अगर आ जाता 10 रुपये, तो विच एवर इज लोअर, यानी कि 10 रुपये लोअर है, तो ये मान लेंगे कि प्राइस राइज हो गया है। तो या तो फिर आपका पिछले साल का देखेंगे या फिर 5 साल का लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज निकाल के देखेंगे, विच एवर इज लोअर तो प्राइस राइज मानेंगे और फिर उसके ऊपर स्टॉक लिमिट इम्पोज कर देंगे। फॉर नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चरल फूड स्टफ्स, जो पेरिशेबल नहीं है यानी कि जो खराब नहीं होते, ऐसे जो फूड स्टफ्स हैं, सो इनके लिए प्राइस ट्रिगर विल बी 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो इनके लिए क्या है ना कि जैसे ये कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए राइस वीट यू कैन स्टोर फॉर ए लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, सो ये नॉन पेरिशेबल में आते हैं। हॉर्टिकल्चरल में आ गया आपका ऑनियंस, पोटैटोज आ गए आपके, देन आपके आई थिंक पल्सेस भी नॉन पेरिशेबल में ही आते हैं। तो जो ऑनियन पोटैटो हैं दीज आर दी पेरिशेबल, और नॉन पेरिशेबल में प्राइस ट्रिगर विल बी 50%, अब 50% ही बढ़ गया 12 महीने में, यानी कि पिछले साल अगर से आज के टाइम में अगर 50% बढ़ गया और द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ द लास्ट 5 ईयर विच एवर इज लोअर, तब भी इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज मानेंगे। इसमें कम है उसमें ज़्यादा है, मतलब उसमें ज़्यादा बढ़ेगा तो ही मानेंगे, इसमें कम भी बढ़ जाएगा, 50% में बढ़ गया तो भी प्राइस राइज मान लेंगे। बेनिफिट्स क्या है इसके अमेंडमेंट के, इट विल रिमूव ऑब्वियसली रोड ब्लॉक्स इन इन्वेस्टमेंट एंड हेल्प बोथ फार्मर्स इन कंज्यूमर्स, दोनों की हेल्प करेगा, कंज्यूमर्स की भी और फार्मर्स की भी। क्योंकि फार्मर्स की कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि फार्मर्स ऑब्वियसली अब मार्केट में बेच पाएंगे खुले तौर पे, जो कि पहले नहीं बेच पाते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, एमएसपी पे उन्हें बेचना पड़ता था मंडी के अंदर, मार्केट में लोग खरीदते नहीं थे। क्योंकि मार्केट में क्यों नहीं खरीदते थे लोग, क्योंकि वो स्टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट इम्पोज कर रखी थी, तो मार्केट में नहीं खरीदते थे, तो डेट इज वाई उन्हें मंडी में बेचना पड़ता था। मंडी में ऑब्वियसली आपको मैंने बताया जैसे बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो नहीं बेच पाते, इवन वो एमएसपी से बेच के चले जाते हैं बेच के। तो इससे जो इन्वेस्टमेंट का रोड ब्लॉक खत्म होगा और फार्मर्स और कंज्यूमर्स, ऑब्वियसली कंज्यूमर्स का भी इसका फायदा होगा कि 12 महीने आपको चीज़ें मिलेंगी। इट विल ब्रिंग रिलेटिव प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी क्योंकि 12 महीने कोई भी सामान मिलेगा। इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ एग्री प्रोड्यूस दैट हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। ऑब्वियसली स्टोरेज फैसिलिटी कम होती है तो लैक ऑफ स्टोर नहीं होता तो सड़ जाता है, तो वो वेस्टेज नहीं होगा इस बार इसकी वजह से। इट विल हैव ड्राइव अप इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रिटेल चेन, फूड सप्लाई चेन। इट विल हेल्प टू लेसन द फियर्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑफ एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेरेंस इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस। प्राइवेट को हेल्प करेगा कि उनके जो रेगुलेटरी इंटरफेरेंस था बिजनेस ऑपरेशंस में वो कम हो जाएगा, तो उनके लिए हेल्प करेगा, वो इजीली अपना बिजनेस कंडक्ट कर पाएंगे। इट विल बेनिफिट द फार्मर दैट ही विल नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट ट्रेडर्स और टू डिफरेंट पीपल टू सेल हिज क्रॉप। ये फार्मर को भी हेल्प करेगा क्योंकि उसको डिफरेंट ट्रेडर डिफरेंट पीपल को नहीं जाना पड़ेगा सेल करने के लिए। रेदर इफ वन पर्सन वांट्स टू बाय द एंटायर क्रॉप, क्योंकि अब स्टॉक लिमिट की कोई टेंशन नहीं है, देन द फार्मर विल गिव इट टू हिम बिकॉज द बाय विल नॉट हैव द टेंशन ऑफ स्टॉक लिमिट। तो वो एक को ही देगा, 50 को नहीं देना पड़ेगा, तो सबके लिए फायदेमंद है ये। लेकिन इसके कुछ इश्यूज भी हैं, छोटे मोटे इश्यूज हैं, मैं उनको भी बताऊंगा। आपके क्रिटिकल इवेल्युएशन में ऑब्वियसली काम आएगा इन योर एग्जामिनेशन। शॉर्टकमिंग्स क्या है, ये बहुत जरूरी है शॉर्टकमिंग्स समझना में। द क्लॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज का जो क्लॉज इसमें डाला गया है, ये कह रहे हैं कि ये डिलीट होना चाहिए। जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्यों कह रहे हैं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इट मे बी डिलीटेड इफ प्राइवेट सेक्टर इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड लार्ज एंड मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज। तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर बड़े स्केल पे पार्टिसिपेट करे और स्टोरेज फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करे। इट कैन देन पुश इन्वेस्टमेंट इनटू बिल्डिंग मोर एफिशिएंट फूड सप्लाई लाइन, क्योंकि उनको डर होगा कि अगर प्राइस राइज बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट जो चाबुक चलाएगी और सारा जो स्टोरेज में से सामान निकलवा लेगी। तो ये हटाना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज।
तो इसको इस तरीके से मत लिखिएगा, आप लिख सकते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज का जो गवर्नमेंट ने क्लोज रखा है, इट में इसकी वजह से लोगों में और जो बिजनेसमैन है ये डर है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट जो रेगुलेटरी इंटरफेरेंस करती थी और जो चाबुक चलता था वो अब भी चला सकती है। गवर्नमेंट ने ये जो हथियार अपने हाथ में ही रखा है। So still the power lies in the hands of the government, that whenever it wants to push the limit or push the stock limit of the grain or the crop, then it can do so and at its whims and fancies, but it cannot be done at its whims and fancies, but the clause which is the 100% rise and the supply of the जो लास्ट 5 ईयर्स में से जो 50% का देखेंगे 100% देखेंगे, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो पॉइंट्स रखे हैं एक्सट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज के, डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद हैं, यानी कि इनसे जो फियर्स हैं वो दूर होंगे। बट जो एक्सट्राऑर्डिनरी प्राइस राइज का है उस पर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। उसके अलावा फार्मर्स में स्टिल नॉट गेट एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम द ECA, ठीक है ना। फार्मर्स को फिर भी मे बी फ्रीडम ना मिले ECA से। क्यों नहीं मिले? दिस इज बिकॉज इन ए कंट्री लाइक इंडिया एग्रीकल्चरल पॉलिसीज नीड टू बैलेंस बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट, ठीक है ना। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इंटरेस्ट दोनों को हेल्प करनी चाहिए। अब ये जो गवर्नमेंट जो ECA अमेंडमेंट लाई है केवल कंज्यूमर को इंटरेस्ट कर रहा है, ये कह रहे हैं। ये एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसीज कीप इन व्यू द इशू ऑफ फूड इन्फ्लेशन एंड फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि फूड इन्फ्लेशन को तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है क्योंकि कंज्यूमर को इंटरेस्ट देना है, बट फूड अवेलेबिलिटी को, उस इश्यू को कहाँ एड्रेस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल द MSP फॉर 24 क्रॉप्स आर डिटरमाइंड बाय फैक्टरिंग इन बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट बिसाइड्स अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर इंटरेस्ट यानी कि फार्मर के इंटरेस्ट को तो इसमें ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि फार्मर जो है ना, इसमें ECA में अभी भी फ्रीडम नहीं मिल पाएगा फार्मर को। वही जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मर हो सकता है सभी को कि अगर फार्मर जो है आपका MSP पे बेच रहा है अगर क्रॉप, तो अब मान लीजिए MSP पे नहीं बेचता है फार्मर क्रॉप, अब तो मार्केट पे बेचेगा मार्केट प्राइस पे। तो अभी क्या है ना, हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उससे कम पैसे में खरीदे। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो कि बिग बिजनेसमैन है, बिग ट्रेडर्स हैं, फार्मर बार्गेनिंग कैपेसिटी फार्मर की ना हो, उससे बार्गेन करने के लिए मार्केट प्राइस पे नहीं बेच पाए, और मार्केट प्राइस और MSP में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और MSP पे वो मार्केट पे खरीदेंगे नहीं। तो फार्मर अभी भी हो सकता है ECA अमेंडमेंट से फ्री ना हो पाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये तो देख लिया कि कंज्यूमर इंटरेस्ट पे ध्यान देना है ECA अमेंडमेंट करके, क्योंकि क्या होता था बट फार्मर के लिए कितना बेनिफिशियल है ये देखने वाली बात होगी। द रिफॉर्म इन द ECA में अपियर गुड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेयर्स, दैट इज एक्सपोर्टर्स, प्रोसेसर्स, traders, value chain participants, but may not help farmers directly. These players may prefer to stock up their quota in season when prices are low. So ये players क्या करेंगे ना, मतलब जब सीजन में प्राइसेस कम होंगे तो स्टॉक कर लेंगे, and therefore would not need to buy later when prices firm up. तो कम, मैंने जैसे बोला कि फार्मर को कम दाम पे ही खरीद लेंगे, ज़्यादा दाम पे, क्योंकि फार्मर का क्या होता है ना, फार्मर जब क्रॉप लेकर आता है उगा के बेचने के लिए, तो फार्मर ऑब्वियसली चाहता है कि उसकी जल्दी से जल्दी क्रॉप बिक जाए। अब क्या होगा कि क्योंकि ये पेरिशेबल अगर फूड स्टफ है और वो जल्दी से जल्दी फार्मर चाहता है, नॉन पेरिशेबल भी है, उसको नेक्स्ट क्रॉप के लिए पैसा चाहिए, नॉन पेरिशेबल में भी उसको नेक्स्ट क्रॉप के लिए पैसा चाहिए। अब इशू क्या होता है कि फार्मर क्योंकि सीजन में जब इतनी सारी सप्लाई आ जाती है तो हो सकता है कि फार्मर जो है कम दाम पे बेच दे और वो लोग स्टॉक कर लें, क्योंकि स्टॉक लिमिट है नहीं, एंड देयरफॉर वुड नॉट नीड, और जब प्राइस बढ़ जाए तो खरीदेंगे नहीं उनसे ऑब्वियसली। बट सिंस फार्मर्स मोस्टली सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, जैसे मैंने आपको बोला, दे मे एंड अप सेलिंग एट लो प्राइसेस। इफ दे रिटेन प्रोड्यूस फॉर लेटर सेल, अगर वो रिटेन करेंगे लेटर सेल के लिए, दे मे एनकाउंटर सिग्निफिकेंट रिस्क, प्राइसेस मे नॉट गो अप एज एक्सपेक्टेड। हो सकता है प्राइसेस मे नॉट गो अप एज एक्सपेक्टेड क्योंकि गवर्नमेंट ने कंट्रोल हटा लिया है, और प्राइवेट ट्रेडर्स मे नॉट एंटर द मार्केट टू परचेज, और प्राइवेट ट्रेडर्स आए ना मार्केट में परचेज करने के लिए। तो बेसिकली क्या है ना, शॉर्टकमिंग ये है कि हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर का इंटरेस्ट तो देख लिया, बट फार्मर का इंटरेस्ट इस ECA अमेंडमेंट से सर्व होगा नहीं होगा, ये अभी समझने पड़ेगा, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी पड़ेगी, ताकि जो ECA अमेंडमेंट किया है कि कोई भी स्टॉक नहीं होगी, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे कि एटलीस्ट जो भी फार्मर अपना क्रॉप बेच रहा है तो वो MSP पे ही बेचे, इवन अगर प्राइवेट को भी बेच रहा है, और MSP पे अगर नहीं बेच पा रहा तो गवर्नमेंट उसके खाते में जो डिफरेंस है, जो मैंने आपको प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट मैकेनिज्म की बात की, वो गवर्नमेंट जो है उसके खाते में डाले।
और गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे कि जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी प्रोसेसर्स हैं, जो भी वैल्यू रिटेल चेन जो बिजनेसमैन हैं, तो वो मतलब एमएसपी पे ही खरीदें, और जो मार्केट प्राइस पे अगर खरीद रहे हैं दैट शुड बी एज इक्वलेंट एज एमएसपी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है एवरी जो हर क्रॉप का बिफोर एवरी सोइंग सीजन। तो गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करती है एमएसपी, तो उस एमएसपी पे ही प्राइवेट को बाउंड करना चाहिए। एमएसपी अगर गवर्नमेंट लीगल कर देगी एंड बाउंड कर देगी कि प्राइवेट वाले भी उस पर ही खरीदें, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा फ्यूचर में और फार्मर्स को भी हेल्प करेगा। ईसी अमेंडमेंट से डेफिनेटली फ़ायदा है, बट ईसी अमेंडमेंट के साथ गवर्नमेंट को एमएसपी को भी अमेंड करना पड़ेगा ताकि एमएसपी को एक लीगल एंटिटी बनाया जाए और जो भी प्राइवेट पार्टीज हैं वो एमएसपी पे बाउंड हो इसको खरीदने के लिए फार्मर को। और उसके अलावा जो फार्मर है वो जो क्रॉप बेच रहा है, अगर वो कम दामों पे बेचने के लिए मजबूर हो रहा है तो गवर्नमेंट को सप्लाई ये जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल प्राइवेट ही नहीं, गवर्नमेंट अपना भी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए ताकि जो अगर एक्सप्लोइटेशन प्राइवेट पार्टीज के हाथों अगर फार्मर्स का होगा तो एटलीस्ट फार्मर कैन सिक्योर देयर क्रॉप्स बाय paying a very discounted price to or very throwaway prices to the storage, the government storage bodies। तो वहाँ पे गवर्नमेंट स्टोरेज बॉडीज में जाके फार्मर स्टोर कर पाए, और जब उनका प्राइस एक मार्केट प्राइस एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए, एक अच्छे आ जाए, जब सप्लाई गिरेगी तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब उस पे आ जाए तो डेफिनेटली उसको वो स्टॉक को निकालें और खुले मार्केट में बेच दें। तो काफ़ी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, केवल ईसीए का अमेंडमेंट करने से काम नहीं होगा, जैसा मेरा इसमें मानना है। तो मेरे ख्याल आपको एग्जामिनेशन में अगर आप लिखेंगे इन सब पॉइंट्स की बात जिक्र करेंगे तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि आपका पर्सपेक्टिव फार्मर इश्यूज़ के ऊपर और ये सारे इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी वाइड है और काफ़ी चीज़ें आपको पता है इसके बारे में। तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा एग्जाम में अगर इन सब इश्यूज़ के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो। ओके, सो विद दिस आई एंड माई लेक्चर एंड आई होप यू लाइक माई लेक्चर एंड kindly like my lecture as much as you can, and subscribe my channel so that I upload more and more such educational videos. Plus in the next lecture I'll be covering the locust attack. So the recent locust attack, जो टिड्डियों का अटैक हुआ है हमारे देश पे, द लोकस्ट अटैक ऑन इंडिया, सो विल बी कवरिंग दैट थिंग in the next lecture in detail. Plus also I'll be covering the issue of food security in India. So food security in detail I'll be covering, plus locust attack. So locust attack will not study in detail about that. We'll study why it happens, where it happens, and what is the solution. So we'll study that. So 4 to 5 slides will be covering the locust attack, and then we will be covering the food security part. Thank you. So one conclusion also, I've forgotten to explain the conclusion part also. So you can read it out, that India has moved from being a food scarce country to a food surplus country with a substantial increase in production and has emerged as a net exporter of cereals. The policies needs to move on now to incentivize diversification and environmentally sustainable production. ठीक है ना? तो जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्शन जो है बहुत बढ़ गया है, बट हमें डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए. द फार्मर्स नीड्स टू बी एम्पावर्ड थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज एंड कैश ट्रांसफर्स, जैसे डीबीटी की बात की, और इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ की बात एम्पावर किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ के द्वारा फार्मर्स को, विच आर क्रॉप न्यूट्रल एंड डू नॉट इंटरफेयर विद द क्रॉपिंग डिसीजंस ऑफ द फार्मर. ऑब्वियसली अगर आप कैश ट्रांसफ़र कर देंगे या डेफिशिएंसी की पेमेंट कर देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा ना कि कोई क्रॉपिंग डिसीजन में इंटरफेरेंस नहीं होगा. अभी क्या होता है ना, वो वीट एंड राइस उगाने के लिए मजबूर है.
the coverage of NFSA needs to be restricted to the bottom 20% and the issue prices for other could be linked to the procurement prices. ठीक है ना, NFSA का 20% पे restriction देना चाहिए and the issue prices for others could be linked to the procurement prices. और जो others का procurement issue price है that will be linked to the procurement price. ठीक है ना. Another alternative would be giving income transfers to consumers through DBT. Internationally, there is a move towards CCT, conditional cash transfer, aimed at tackling problems of food insecurity. इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फूड सिक्योरिटी. इसमें हम CCT के बारे में बात करेंगे एंड पॉवर्टी एंड फॉर नजिंग पीपल टुवर्ड्स इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड एजुकेशन लेवल्स. Now, according to the economic survey, following steps are required to be adopted. रिड्यूस दी कवरेज अंडर PDS. इसने बात की इकोनॉमिक सर्वे ने कि प्लेस को कम करना चाहिए. ऑब्वियसली फूड सब्सिडी बिल बचाना है. लिंक इशू प्राइसेस टू एटलीस्ट हाफ द प्रोक्योरमेंट प्राइसेस. अब ये इशू प्राइसेस क्या है ना, इशू प्राइसेस जो बेसिकली क्या है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो प्रोक्यूर करती है ग्रेन्स को, अब वो ना स्टेट को बेच देती है. तो स्टेट को जब बेचती है FCI ताकि गोडाउन्स में जाता है तो वो इशू प्राइस पे बेचते हैं. तो लिंक इशू प्राइसेस टू एटलीस्ट हाफ ऑफ प्रोक्योरमेंट प्राइसेस. तो जो इशू प्राइस है तो वो प्रोक्योरमेंट का हाफ तो होना ही चाहिए. यानी कि अगर 10 रुपए का आपने खरीदा है तो इशू प्राइस 5 तो करो ही ना. अभी क्या करते हैं ना, इशू प्राइस जो है ना वो इतना कम है या दैट इज नॉट एट ऑल लिंक विद द प्रोक्योरमेंट प्राइस. तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा एटलीस्ट हाफ तो कर दो ना, अपना फूड सब्सिडी बिल कम हो जाएगा उससे. बहुत ज्यादा है इस टाइम क्योंकि इशू प्राइस इज टू लेस एज कम्पेयर टू द प्रोक्योरमेंट प्राइस. एंड मूव ग्रेजुअली टुवर्ड्स कैश ट्रांसफर DBT की बात कर रहे हैं, PDS में DBT की बात कर रहे हैं. इसके ऊपर डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फूड सिक्योरिटी में. प्लस वी विल स्टडी द लो कॉस्ट अटैक ऑल्सो. सो विद दिस आई थैंक यू ऑल. आई होप you like my lecture and sorry for the inconvenience caused due to I have forgotten that I have written a conclusion part also. So you kindly see the conclusion part, that is also important for your understanding. Thank you so much.